And on the biggest story tonight, a story that many news channels for some reason aren't even reporting on. On the day India officially outlawed the PFI, several Muslim groups, many Muslim leaders, including clerics, scholars, came out and backed the ban on the PFI. And some of them who backed the ban on the PFI are now getting death threats. In fact, when we reported the story this morning on Republic TV, the cleric who received this death threat was live on Republic. In fact, many more scholars and clerics joined him live on the broadcast. And they too said how they were being targeted more increasingly in the last few weeks and months for their nationalistic stand. Basically, to put it simply, they are being attacked for backing the Modi government or the Modi government stand. Let's go across straight to the cleric who received the death threat. Joining us live on the show this evening on the biggest story tonight, I have Maulana Shahabuddin Razvi Barelvi joining us on the show. And when he was live with us earlier today, Atikur Rahman, who many times in the past on debates on Republic TV, on many shows and many conversations that I've had with him, has initially questioned the PFI, opposed the PFI, but doesn't agree with the ban on the PFI. In fact, he's increasingly defending the PFI. We'll ask him why he's doing that. But first, I want to go across to Maulana Shahabuddin ji. Maulana Shahabuddin ji, thank you for joining us. हमें ये बताइए कि आपको ये कॉल कब आया, कौन कॉल किया था आपको और उन्होंने क्या बताया आपको? ये कॉल मेरे पास में कल दोपहर 3:42 पर आई और उस आदमी ने कहा कि तुम बहुत बोल रहे हो पीएफआई के ख़िलाफ़ और पीएफआई की बहुत मुखालफत कर रहे हो, टीवी चैनलों पे बहुत आ रहे हो, तुम्हारी ज़ुबान तराश ली जाएगी और तुम्हारे वजूद का ख़ात्मा कर दिया जाएगा। और इसी तरीक़े से बहुत सारी बातें उसने कहीं और बहुत ऐसी जो है वो तकलीफ़ दे बात कही। और उसके बाद में ये मुश्किल से 1 मिनट की बात हुई होगी और मैं बहुत छोटा सा फ़ोन चलाता हूँ क्योंकि ये नंबर है, ये मोबाइल है मेरा और छोटा फ़ोन चलाता हूँ, नेट वगैरह और ये व्हाट्सएप वगैरह से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैंने उसका टाइम और नंबर मैंने नोट कर लिया। नोट करने के बाद मैंने तुरंत एसएसपी को मैंने बताया। मैं कल लखनऊ में था और रात में लखनऊ से बरेली आया। बरेली आने के बाद में आज 12 बजे मैं एसएसपी साहब से मिला। एसएसपी साहब से मिल करके उनको पूरी सूरत हाल से आगाह किया और उनसे तमाम सूरत हाल, तमाम जानकारी मैंने दी कि किस तरीके से कैसे फ़ोन आया। क्योंकि मैं अभी नहीं, जब से भारत सरकार ने बैन लगाया, मैं तो काफ़ी महीनों से उसकी कट्टरपंथी विचारधारा के ख़िलाफ़ मैं बोल रहा हूँ कि ये विचारधारा, जिस विचारधारा को पीएफआई लेकर के चल रही है और हिंदुस्तान के नौजवान मुसलमानों को बरगला रही है, गुमराह कर रही है। हाँ जी। ये दरअसल ये सूफ़ी विचारधारा के ख़िलाफ़ है और सूफ़ी विचारधारा वो विचारधारा है जो पूरी दुनिया जानती है। वो दिलों को जोड़ने की ताकत रखती है और दिलों को जोड़ती है और देश की एकता और अखंडता कायम रख सकती है। और पीएफआई की जो विचारधारा है वो देश की एकता, नहीं मौलाना शाहबुद्दीन जी, देश की सालमियत के खिलाफ है। मौलाना शाहबुद्दीन जी, जब आप लाइव थे हमारे साथ रिपब्लिक टीवी पर आज दोपहर को, आपको आरएसएस मैन, आरएसएस प्रचारक करके बुलाया था। कई लोग जो थे फोन पर, आतिकुर रहमान भी थे आपके साथ। आतिकुर रहमान जी भी पीएफआई के बारे में बहुत बात करते थे, वो अपोज करते थे, कट्टरपंथी बुलाते थे उनको, लेकिन आज वो मोदी गवर्नमेंट को गाली दे रहे। Atikur Rahman, you've been on so many debates with me. You oppose the PFI, what they've done to the country. Why are you attacking? Why are you questioning this cleric? In fact, he is the director of the Islamic Research Center, General Secretary, All India Tanzeem Ulema-e-Islam. Now, tell me something, Atikur Rahman. Atik, you tell me. Why are clerics even remotely backing
any decision of the government, and he's not doing it to back the government. Like yourself, Atiq, I have clips of you opposing the PFI, saying they should be banned. You, Atiq, have said in the past they should be banned. Why are you questioning Maulana today? Niranjan, should I speak in Hindi so that it is better communicated to Yes, you Maulana can. Sahab? जी बताइए. यस मौलाना साहब, मेरा सलाम आपको। मौलाना साहब, आप और जितने हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे इमाम साहब हैं, हमारे मुफ्ती साहिबान हैं, ये इतनी रुतबे के काबिल है हमारी कम्युनिटी के अंदर कि आपकी तरफ कोई भी हाथ उठने से पहले उनको लाखों लाख हमारे मुसलमानों की लाशों पे से गुजरना पड़ेगा। आप जरा फिक्र ना करें, आपको कोई धमकी नहीं मिल रही है। जो कुछ भी धमकी मिल रही है वो ये बीजेपी आरएसएस की साजिश है। और क्योंकि सूफी ताल्लुक से आपने बात की है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी बरेलवी से मैं ताल्लुक रखता हूं। मेरे काफी खानदान के लोग मुरीद रहे हैं आला हजरत साहब के, आला हजरत खान साहब के। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये साजिश है बीजेपी आरएसएस की। पीएफआई के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इनके पास नहीं है। कोई इस्लामिक स्टेट वो नहीं बनाना चाहते थे। अगर उनका आप कैसे बोल रहे हैं, लेकिन सेक्स से कोई अगर ना इत्तेफाकी है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो इस्लामिक स्टेट बनाने जा रहे हैं। ये छलावा है। ये आतिकुर रहमान जी, लेकिन आप कैसे इन्वेस्टिगेटर बन गए? क्योंकि इनका हिंदू राष्ट्र का जो एजेंडा है। आतिकुर जी, आप इन्वेस्टिगेटर कैसे बन गए? आप कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि उनके पास एविडेंस नहीं है? Yes, a good question, Niranjan. A very good question. The vision document of PFI 2047, which is available on their website. I don't know whether right now it is there or not because they have accepted a ban. But I have read that document. In the document, nowhere, Niranjan, it is mentioned that they are into making. How will a terrorist say I am a terrorist? One minute. Come on, ठीक, रिजवी साहब, आप बताइए, मौलाना शहाबुद्दीन जी, आप बताइए, आप ये क्या है? I mean, you're expecting them to put the 2047 document on their website. Atiq, are you serious? मौलाना जी wants to say something to you. मौलाना जी बताइए. देखिए, बीच में अतीक साहब नहीं बोलेंगे मेरी बात के दरमियान। मैंने उनकी बात मुकम्मल सुनी है, इसलिए मेरी बात भी वो सुने। पहली बात यह है कि उनको सलाम करने का तरीका नहीं आता। सलाम किया जाता है अस्सलामु अलैकुम, ये पूरा सलाम होता है, एक बात। दूसरी बात, उनको तारीख की जानकारी नहीं है, चाहे जिस देखिए, फिर बीच में बोले मैंने आपसे कहा कि बिल्कुल मत बोलिए। मैंने खामोशी के साथ आपकी बात सुनी है, इसलिए खामोशी के साथ मेरी बात पूरा कर रहा हूं। दूसरी बात यह है कि आपको तारीख की जानकारी नहीं है। आला हजरत का इंतकाल 1921 में हुआ। 1921 के हिसाब से आज 104 साल हो गए। 100-400 साल आपकी उम्र हो गई। या बताइए, आला हजरत को इंतकाल किए हुए 1921 में आला हजरत का इंतकाल हुआ। कब मुरीद हुए थे आपकी? आप मुरीद हुए थे या आपका खानदान के लोग मुरीद हुए थे? आप बताइए, आपकी इस वक्त उम्र कितनी होगी? मैं समझ सकता हूँ कि 50-55 साल आपकी उम्र होगी और आला हजरत को इंतकाल किए हुए 104 साल हो गए। तो 104 साल तक जो है कि कितनी लंबी आपकी उम्र है, माशाल्लाह। तो दूसरी तारीखी गलती। और आप कह रहे हैं कि मैं बरेलवी हूँ और आप कह रहे हैं मैं मुरीद हूँ। खैर, आप जो है कोई भी बरेलवी, हिंदुस्तान का कोई भी बरेलवी विचारधारा का आदमी या आलिम दीन पीएफआई का समर्थन नहीं कर सकता है। आपने अभी देखा होगा, अभी कुछ घंटा पहले आपके साथ में मुफ्ती मंजूर ज़ियाई साहब जो चीफ काजी हैं महाराष्ट्र के, वो बैठे हुए थे। मेरी तरफ से उन्होंने जवाब दिया था और वो खुद जो है वो पीएफआई के खिलाफ बोल रहे थे। तो पूरे हिंदुस्तान में दावे के साथ कह रहा हूँ, कोई भी आलिम दीन, बरेलवी आलिम दीन या बरेलवी विचारधारा का शख्स पीएफआई का समर्थन नहीं कर सकता, इसलिए कि पीएफआई शिद्दत पसंद तंजीम है और जो है कट्टरपंथी विचारधारा रखती है। हमारी लड़ाई कट्टरपंथी विचारधारा। नहीं, मैं बोलता हूँ मौलाना जी, आपको कुछ मैं कहना चाहता हूँ। मौलाना जी, आपको मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सूफी विचारधारा के हम परवल दावेदार हैं और उसी के मुबल्लिग हैं और उसी के हम प्रचारक हैं।
मौलाना जी, मैं आपको कुछ बोलना चाहता हूँ। अतीकुर रहमान उसके बाद बात कर सकते हैं। और मौलाना जी, मुझे ये लगता है कि अतीकुर रहमान हमारे चैनल पे आते थे और अभी भी आते हैं, उनको डर नहीं है आने में, लेकिन वो आके वो पीएफआई को कंडेम करते थे, पीएफआई को कंडेम करते थे। और मेरे पास टेप है, मेरे डिबेट में खुद आके बताया है इन्होंने, अर्नब जी के साथ के बैठ के भी डिबेट पे बताया है इन्होंने कि पीएफआई को बैन करना है। उनका टेप है, रिकॉर्ड पे है। लेकिन आज उनका पूरा रिकॉर्ड यूटर्न हो गया, रिकॉर्ड टूट गया उनका। उनको डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि उनको भी कुछ धमकी मिली है। आतिक, हैव यू बीन थ्रेटेन्ड? हैज एनीबॉडी वार्न्ड यू? आपको भी क्या थ्रेट मिला है, थ्रेट कॉल मिला है? क्योंकि मुफ्ती मंजूर ज़ियाई भी हमारे साथ लाइव थे, उन्होंने, वो भी मुंबई से है अतीक, और उन्होंने भी ये बताया कि जब भी वो कुछ रैशनल स्टैंड लेते हैं उनको धमकी मिलती है। Who are these people? Why are they so scared every time a scholar or a cleric takes a stand which in their view backs the Modi government remotely? They get a threat. Why? Yeah, may I come in, Niranjan? Have you got threat calls, Atik? Good that you have asked me this. I have not got any threat so far. I am very comfortable in my position and I have always taken a constitutional position. I have never said that de facto any organization, be it a Muslim or a Hindu, they can claim that they will be turning my beautiful India into either a Islamic state or a Hindu Rashtra. Only on constitutional grounds I have supported the PFI. I have round the clock said that the day it is proved in the court of law that the PFI has involved themselves in anti-nation activities, anti-constitutional activities, in the violation of IPC, I will be the first person to slap them, to condemn them. No organization in India can threaten my mighty India, my beautiful nation. Our common enemy is Pakistan. Our common enemy can be the westernized nations. Our proud nation is only with the pride of the constitution and the pride in the tricolor of India, Niranjan. Herein, my common enemy with my community is BJP RSS. They are creating a but BJP and RSS hasn't taken this decision, Atik. The government of India has banned RSS. No, government of India has banned PFI, sorry. Succeed. Government of India has banned PFI. BJP and RSS hasn't banned PFI. Government of India has banned PFI. Succeed, Niranjan, let me tell you. आप मौलाना को भी बताइए, आप हिंदी में बात करके उनके साथ बातचीत कीजिए। आप organization is unconstitutional without any proofs. लेकिन आप डिबेट पे क्यों आके बताया कि मुझे क्यों बताया आपने कि पीएफआई को बैन होना चाहिए, पीएफआई पे बैन होना चाहिए? आपने खुद मुझे मेरे डिबेट में बताया था पहले, 2 महीने पहले। वाह 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 वाह। I'll explain this, Niranjan. क्या बात है, क्या बात है। Niranjan, I'll explain this. मौलाना जी क्या बता रहे हैं आप उनको? May I go ahead, Niranjan? Yes, Maulana was saying something to you and then you can respond to him. मौलाना जी बताइए क्या बात कर रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो बात कह रहे हैं कि अतीक साहब जो है पहले पीएफआई के खिलाफ थे और आज जो है पीएफआई के समर्थन में खड़े हैं। स्टैंड चेंज हो गया है। राज क्या है, इसके पर्दे के पीछे राज क्या है, ये राज समझना चाहता हूँ। पूछ लीजिए, आप ही पूछ लीजिए उनसे। अतीक साहब जरा राज बताइए कि पहले आप मुखालिफ थे और पीएफआई की बड़ी शिद्दत से मुखालफत करते थे और उसके हर एक्टिविटीज की मुखालफत करते थे, आखिर पीएफआई के समर्थन में आज क्यों खड़े हैं? क्या राज है? एक बात ये। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आरएसएस ने कॉल कराई थी मुझे, आरएसएस ने धमकी दिलाई है, जबकि ऐसा नहीं है। मुझे मेरा आरएसएस से क्या मतलब, क्या लेने देना? मेरा तो पॉलिटिकल मामला भी नहीं है किसी से। मैं किसी सियासी जमात का मेंबर तक नहीं हूँ। कोई भी सदस्य, कोई भी एक सदस्यता भी मेरी नहीं दिखा सकते। मैं दावा कर रहा हूँ, आपको दिखाइए सदस्यता मेरी कोई कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी की। और आरएसएस की बात कर रहे हैं वो भी गलत है। मुझे क्यों आरएसएस जो है वो धमकी दिलाएगी? मुझसे क्या खतरा है आरएसएस को? ओके, मुझे एक रिक्वेस्ट है अतीक और मौलाना शहाबुद्दीन जी, एक रिक्वेस्ट है। प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं यहाँ पे गुजरात में, ही इज ऑन अ कैंपेन। मुझे उस पे लाइव जाना पड़ेगा, बट ऑन द प्रॉमिस सर आई विल गेट यू बैक। आई थिंक यू आर कमिंग बैक ऑन द डिबेट विद अर्नब टुनाइट. Arnab is debating this at 10:30. Look forward to speaking to both of you. Maulana ji, Atik, thank you for joining us. I'm cutting across live. Thank you very much. Thank you.